Hello बच्चों, how are you all? I hope you all are fine. So today's topic is unitary method. Learning objectives. To understand the unitary method, to apply the unitary method to solve problems. Now tune up. What is unitary method? Unitary method is the method of finding the unit price and then finding the cost of many. Now let's start. When you are given the cost of one object, you can find the cost of many objects. You can do so by multiplying the cost of one object with the number of objects. Also, when you are given the cost of many objects, you can find the cost of one object by dividing. Example करते हैं, example 1. The cost of a toy car is ₹25. What is the cost of 10 toy cars? Solution करते हैं इसका. Cost of one toy car is equals to ₹25. So cost of 10 toy cars ज़्यादा होगा. We have to multiply. So cost of one toy car multiply by 10. That is equals to ₹25 multiplied by 10 is equals to ₹250. Now example 2. If the cost of 15 pence is ₹300, find the cost of 8 pence. Solution करते हैं. Cost of 15 pence is equals to ₹300. अब 15 पेन की कॉस्ट दे रखे हमें 8 पेन की निकालनी है, तो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ 1 पेन. सो कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ 15 पेन्स डिवाइडेड बाय 15. तो 1 पेन की कॉस्ट कम होएगी तो हमें डिवाइड करना है. ₹300 डिवाइडेड बाय 15 इज इक्वल्स टू ₹20. ₹20 इज द कॉस्ट ऑफ 1 पेन. सो कॉस्ट ऑफ 8 पेन्स इज इक्वल्स टू 8 पेन की कॉस्ट ज़्यादा होगी तो 1 पेन की कॉस्ट को मल्टीप्लाई करेंगे 8 से. 8 मल्टीप्लाई बाय 20 इज इक्वल्स टू ₹160. नाउ प्रैक्टिस टाइम 11.1. क्वेश्चन नंबर 1. The price of a dozen pencils is ₹36. What is the price of one pencil? Find the cost of 15 pencils. So, question number 1. Cost of one dozen. One dozen means 12 pencils is equals to rupees कितना है? 36. तो पहले हम क्या निकालेंगे? Cost of one pencil is equals to ₹36 divided by 12. 12 3s are 36. ₹3 is the cost of one pencil. हमें निकालना है cost of 15 pencils is equals to ₹3 multiplied by 15. ₹45. तो सेम मेथड को यूज करते हुए बाकी के पार्ट्स आप खुद ट्राई करेंगे. नाउ नेक्स्ट इज टाइम एंड वर्क प्रॉब्लम्स. एग्जाम्पल 1. 8 person construct a house in 48 days. How many days will one person take to construct the same house? Solution करते हैं. Note carefully that one person will take more time to finish the work than the 8 persons. So 8 persons construct the house in 48 days. तो 1 person को तो ज़्यादा लगेगा. So 1 person will construct the house in 8 multiplied by 48 days. That is equals to 384 days. Now example 2. 6 person construct a shop in 48 days. In how many days will the shop be constructed if 16 persons are employed? Solution करते हैं. 6 persons construct the shop in 48 days. हमें बताना है 16 लोग कितने दिन में करेंगे. तो उससे पहले हम निकालेंगे 1 person का. तो 1 person will construct the shop in ज़्यादा दिन में करेगा. 48 मल्टीप्लाई बाय 6 डेज दैट इज इक्वल्स टू 288 डेज. अब हम निकालेंगे 16 कम में करेंगे तो हम क्या कर देंगे? डिवाइड. सो 16 पर्सन्स विल कंस्ट्रक्ट द शॉप इन 288 डेज डिवाइडेड बाय 16 इज इक्वल्स टू 18 डेज. नाउ प्रैक्टिस टाइम 11.2. क्वेश्चन नंबर 1. 12 persons took 24 days to dig a well. How many days will 18 persons take to dig the same well? तो करते हैं इस क्वेश्चन को. Question number 1. 12 persons dig the well in how many days? 24 days. तो हम निकालेंगे पहले 1 person का. 1 person dig the well. ज़्यादा दिन में निकालेगा तो 12 मल्टीप्लाई बाय 24. 12 4 ज़ा 48, 8 4 कैरी, 12 2 ज़ा 24 प्लस 4 इज 28, 288 डेज में. 1% 288 डेज में करेगा. हमें बताना है 18%. सो 18 persons
dig the well is equals to 288 divided by 18. 18 1 18, 10, 108, तो 18 6 108, तो 16 डेज। 18 पर्सन्स कितने दिन में करेंगे? 16 डेज में। तो सेम मेथड को यूज करते हुए बाकी के क्वेश्चंस आप खुद ट्राई करेंगे। नाउ नेक्स्ट इज पजल बैग। Darken the correct option in the OMR sheet. Number 1, the price of a dozen banana is rupees 72. Then the cost of 18 bananas is. So 72 divided by 12 because 1 dozen becomes 12, right? So 12 6 72. तो 6 रुपीज का 1 बनाना है, हमें बताना है 18 बनानास की कॉस्ट। तो 6 8 48, 4 कैरी, 6 1 6 प्लस 4 इज 10, 108 रुपीज। तो इट इज ए पार्ट, तो ए को यहाँ फिल करेंगे। तो सेम मेथड को यूज करते हुए बाकी के क्वेश्चंस आप रीड आउट करेंगे, करेक्ट ऑप्शन फाइंड आउट करेंगे और OMR शीट को फिल करेंगे। नाउ नेक्स्ट इज क्रैक द कोड। At a festival footwear sale, each type of footwear is marked at the following rates. Items दे रखे हैं, quantity, pairs और price. Slippers 3 quantity 297, school shoes 2 pairs 412, sport shoes 4 pairs 600, sandals 2 pairs 210. Rajat bought the following, complete his bill. Slippers 6, स्लीपर्स कितने ले रखे हैं उसने? 6, 3 हमारे 297 के हैं, तो 6 कितने के हो जाएंगे? 297 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 6 का पेयर का आ जाएगा, 3 का हमारा कितना है? 297, 6 3 का डबल है तो 297 का भी डबल हो जाएगा। उसके बाद स्कूल शूज 2 पेयर ले रखे हैं, स्कूल शूज के 2 पेयर हैं 412। स्पोर्ट शूज कितने के हैं आपके? 4 पेयर 600 के, हमें एक पेयर लेना है, तो 600 डिवाइडेड बाय 4, 4 1 4, 2 20, 4 5 20, दैट इज इक्वल्स टू 150 रुपीज। एंड सैंडल्स 8 लेने हैं, सैंडल्स 2 का प्राइस दे रखा है 210, तो 8 का कितना होगा? डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 8, 2 4 8, 4 0 0, 4 1 4, 4 2 8, 840, 2 7 14, 4 1 कैरी, 2 9 18 प्लस 1 is 99, 1 कैरी, 2 2 4 प्लस 1 is 5। नाउ सबको हम ऐड कर देंगे, 5 प्लस 2 is 6, नाउ 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 5 is 15, 15 प्लस 4 is 19, 9 1 कैरी, नाउ 5 यहाँ पे 1 कैरी था, 5 प्लस 1 is 6, 6 प्लस 4 is 10, 10 प्लस 1 is 11, 11 प्लस 8 is 19, तो टोटल हुआ रुपीज 1996. Now next is mental maths. Which one is a better deal? A, 2 bags for rupees 4200 और 5 bags for rupees 9500. तो यहाँ पे हम each bag का प्राइस निकालेंगे और देखेंगे which is better. Now B, 20 kg sugar for rupees 1000 और 25 kg sugar for rupees 1800. सेम हियर 1 kg शुगर का प्राइस निकालेंगे और देखेंगे विच इज बेटर। तो ये क्वेश्चन आप खुद ट्राई करेंगे। नाउ नेक्स्ट इज हॉट्स। अ शॉपकीपर हैज 124 पेन्स विद हिम। सारिका बायज ऑल बट 4 एट द रेट ऑफ रुपीज 50 पर डजन। हाउ मच मनी डज शी पे टू द शॉपकीपर? तो 124 पेन्स है, उसने 12 पेन्स लिए 50 रुपीज के, तो 1 पेन कितने का लिया और टोटल क्या रहेगा? तो हाउ मच मनी डज शी पे टू द शॉपकीपर, वो आप खुद ट्राई करेंगे, निकालेंगे कि उसने कितना शॉपकीपर को पे किया। तो ये क्वेश्चन आप खुद ट्राई करेंगे। नाउ नेक्स्ट इज मैथ्स लैब एक्टिविटी। सॉल्व द फॉलोइंग क्रॉस पजल। अक्रॉस दे रखा है, डाउन दे रखा है, तो गिवन आप अक्रॉस में क्या है और डाउन में क्या है, अकॉर्डिंगली आप प्राइजेस निकालेंगे और पजल को सॉल्व करेंगे। तो ये क्वेश्चन आप खुद ट्राई करेंगे, अपनी क्लास में इस एक्टिविटी को परफॉर्म करेंगे अपने टीचर और अपने फ्रेंड्स के साथ। तो बच्चों आई होप आपको चैप्टर समझ आए, इसका रिवीजन आप खुद कीजिए।